Hello, good morning to all of you, dear students. Myself, Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Nimka, Thana. Dear students, how are you? I hope that you are all fine. Today, we will learn our chapter 2nd of Social Studies, class 4th. So, now we are starting our chapters seconds part 2. Here is our chapter 2nd and it's part 2, our heritage. In our previous video we learnt about culture, heritage, customs, material heritage and non-material heritage. Now we will start from our heritage, and topic is our material heritage. Let's find out our material heritage. Historical monuments and buildings, places of worship, statues and gardens, paintings and books which have been built in the past from our material heritage. They help us to learn about our past. Historical monuments जैसे कि buildings, places of worship, it means मंदिर, मस्जिद, church, गुरुद्वारा, statues, मूर्तियाँ, gardens, paintings and books जो कि हमारे पास्ट में बनी थी और ये हमारे मटेरियल हेरिटेज में आती हैं और ये हमें हमारे पास्ट के बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक इज मॉन्यूमेंट्स. Monuments such as caves, forts, places, palaces, gardens and places of worship form a part of our material heritage. Historians study them to know many things about the past, like the name of the kings, persons who built them, the time when these were built, the way the kings and common people lived, whether they were rich or poor, their knowledge about different kinds of materials used for making buildings, and the skills and talent of the artists who built these monuments. Monuments जैसे caves, forts, palaces, gardens और places, worship के places हमारे जो है मटीरियल हेरिटेज का जो है एग्जाम्पल्स हैं. हिस्टोरियन जो है उनकी स्टडी करते हैं और उनके बारे में कई थिंग्स यानी कई चीज़ें पता करते हैं, जैसे कि किस राजा या व्यक्ति द्वारा इसको बनवाया गया होगा, किस समय इसको बनवाया गया होगा, या इसमें रहने वाले लोग कौन थे, क्या वो राजा थे या फिर कोई कॉमन पीपल थे, और क्या वे रिच हुआ करते थे या पुअर हुआ करते थे, और उनकी इस बारे में उनकी नॉलेज, उनके डिफरेंट काइंड्स के जो मटेरियल्स इसको बनाने में यूज़ किए जाते थे उसके बारे में, आर्टिस्टों का टैलेंट, इन सब के बारे में जो है हमें मॉन्यूमेंट से पता चलता है. Look at the picture of the Vijay Vitala temple, figure 4, located in the state of Karnataka. Dear students, here you can watch the temple of Vijay Vitala, which is situated in Karnataka state. A very beautiful and amazing temple who built in our past. Can you imagine that this temple was built around 600 years ago when there were no modern machines? How talented the artist must have been to make such beautiful carving on rocks. The huge pillars of the temples produce different musical tones. Have you seen such a wonderful temple built in the modern times? Can it be made again if we damage it? Definitely not. We must take good care of our monuments, otherwise the coming generations would learn
about the past of our country only through pictures. Dear students, यहाँ आप विजय विताला टेम्पल को अच्छे से देख सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जो कि हमारे पास्ट में बना था, आज से लगभग 600 ईयर्स अगो, यानी 600 साल पहले। और ये जो टेम्पल है वो कर्नाटका स्टेट में सिचुएटेड है। ये काफ़ी फेमस टेम्पल है। क्या आप सोच सकते हैं कि आज से लगभग 600 साल पहले, जब कोई मॉडर्न मशीन्स नहीं हुआ करती थी, तब ये मंदिर बना होगा। कैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट थे जिन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनाया, जो कि कार्विंग जो है, जिस पे कार्विंग की हुई है। और इसके जो ह्यूज पिलर्स हैं टेम्पल के, वो डिफरेंट म्यूजिकल टोन्स को साउंड करते हैं जब इनको टच किया जाता है। क्या आपने ऐसा सुंदर आश्चर्यजनक टेम्पल जो है मॉडर्न टाइम में कहीं देखा है? क्या हम इसको दोबारा बना सकते हैं अगर ये डैमेज हो जाए? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं। इसलिए जो है हमें इन हमारे जो मॉन्यूमेंट्स जो हैं, हमारा जो जितना भी मटेरियल हेरिटेज है, उसको हमें जो है उसकी गुड केयर करनी चाहिए। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारे पास्ट को सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू ही देख पाएंगी। हियर आई एम शोइंग यू सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। यस, द फर्स्ट फिगर इज द अजंता caves carved in the rock walls in Maharashtra. The second one is the Mehrangarh Fort in Rajasthan, Jodhpur, one of the largest forts in India. The third one is beautiful Nishat Bagh in Srinagar, Jammu and Kashmir. The fourth one is the Grand Mysore Palace in Karnataka. Watch it. All these monuments are beautiful and best examples of our past. Some of more examples of our material heritage: sculptures, paintings and craft items. Statues and carving on wood, stone and metal are known as sculptures. The sculptures, paintings and craft items like toys and pots made in the earlier times are studied by the historians to know about our past. Sculpture, paintings और craft item, statues और carving on wood, यानी कि जितने भी स्टैचूज, मूर्तियाँ और वुड पे जो कार्विंग की जाती है, स्टोन पे और मेटल पे जो कार्विंग की जाती है, उसको स्कल्पचर्स बोला जाता है। स्कल्पचर्स जो हैं पेंटिंग्स और क्राफ्ट आइटम्स भी होते हैं, जैसे कि टॉयज़, पॉट्स, जो कि अर्लियर टाइम्स में बने थे। इनको जो है हिस्टोरियंस के द्वारा स्टडी किया जाता है ताकि हम अपने पास्ट के बारे में हमें मालूम चलें। Look at the sculptures on the walls of the Ajanta caves showing scenes from the life of the Buddha. Figure 9, यहाँ आप फिगर 9 में जो है अजंता एलोरा की जो केव्स हैं उनकी वॉल्स पे जो स्कल्पचर बने हुए हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं। ये स्कल्पचर जो हैं बुद्ध के जीवन के बारे में हमें बताते हैं। सो वी कैन नो easily by these sculptures about Buddha, and also the artist, their talent and the lifestyle of the people, king, queens and others. Dear students, here is a toy car in figure 10 with which children of the Harappan town played. The toy cart tells that the Harappan people must have used pots for storing things. Bullock carts seems to be a popular means of transport during those time. बच्चों यहाँ पे एक टॉय कार दी हुई है फिगर 10 में, आप इसको देखो। ये एक टॉय कार है, इसमें कई चीज़ें जो हैं इससे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं।
इस टॉय कार्ट में हमारे पास से संबंधित कई चीज़ें बताई गई हैं। ये जो टॉय कार्ट है ये हरप्पन जो टाउनशिप में मिली हैं, जिससे कि हरप्पन टाउनशिप के बच्चे खेला करते होंगे। और ये जो टॉय कार्ट है वो हमें हरप्पन पीपल के बारे में बताती है और इससे ये मालूम चलता है कि शायद हरप्पन जो पीपल हैं या हरप्पन जो लोग थे वो जो है पॉट्स को जो है स्टोर करने के लिए, थिंग्स को स्टोर करने के लिए यानी चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ लिया करते थे। और बुलक कार्स जो हैं पॉपुलर मीन्स शायद हुआ करती थी उस समय ट्रांसपोर्ट का। इससे और भी कई बातें पता चलती हैं, जैसे कि उस समय के लोग हैं वो जो है ट्रांसपोर्टेशन को जान चुके थे। उनके जो पॉट्स वगैरह होते थे वो क्ले, सैंड यानी मिट्टी के बने होते थे और कार्ट को वो एज ए टॉय के रूप में यूज़ किया करते थे। और कार्ट से वो को एज ए टॉय के रूप में भी यूज़ किया करते थे। और इसके अलावा ये भी मालूम चलता है कि वो जो है ट्रेड भी किया करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को लाने ले जाने का काम भी किया करते थे। उनके जो पॉट्स हैं वो थिंग्स को स्टोर करने के लिए काम में लिया करते थे। आज से लगभग 2005 ईयर्स बिफोर का कि ये कार्ट है, टॉय कार्ट। और ये बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। Dear students, here you can watch a wall painting from a Mughal monument showing floral designs. इसको आप देखें, ये एक वॉल पेंटिंग है जो कि मुग़ल एम्परर ने बनवाई थी। और ये जो ज़्यादातर जो मुग़ल एम्परर होते थे अपनी वॉल्स पे इसी टाइप की फ्लोरल पेंटिंग्स यानी कि फूल पत्तियों वाली डिज़ाइन वाली जो पेंटिंग्स बनवाया करते थे। This wall paintings from a Mughal monument shows that the floral designs figure 11 were very popular during those time. इस वॉल पेंटिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मुग़ल जो पीरियड था, तो मुग़ल पीरियड में जो है मुग़ल जो एम्परर्स थे उनको जो है फ्लोरल जो पेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आया करती थी और वो अपनी वॉल्स पे जो है फ्लोरल पेंटिंग्स बनाया करते थे। इसके अलावा इसमें जो यूज़ किए गए कलर्स हैं, किस तरह कलर कॉम्बिनेशन किया जाता था, किस तरह कलर मेड किया जाता था, इस सब के बारे में भी पता चलता है कब ये बनी होंगी। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट सोर्स है मटीरियल हेरिटेज में वो है बुक्स एंड इंस्क्रिप्शंस। नाउ वी विल रीड बुक्स एंड inscriptions. Books and inscriptions or words written on hard surface like metal and rocks from an important part of our material heritage. They tell us about the lives, thoughts and ideas of the kings and the common people who lived during the time these were written. Books, inscriptions और words जो कि hard surface पे जैसे कि मेटल या रॉक्स पे जो है राइट किए जाते थे, ये भी हमारे